Welcome students to the lecture 5 of week 2. Basically, this is based on assigned assignment. This is one of your major assignment that we have assigned to you in Fall Internship Program 2021 organized by Macon Associates. So basically, this is all about drafting a plaint while acting as a paralegal. You have to assume yourself as a legal associate, lawyer, or a paralegal according to given proposition, and then you have to draft the content for your client. For that, we have given you a proposition that I'll be sharing here in the next slide. Proposition is Mr. and Mrs. Xavier want a divorce. Woman who wishes to seek dissolution of marriage by way of grounds provided in Dissolution of Muslim Marriage Act. Both claim the custody of their three minor children, an 8 and 4-year-old boy respectively, and a 13-year-old girl. Mr. Xavier often neglects the children. He once left his wife and the children and went to live with another woman for last 4 years. During this period, his wife looked after the children, and Mr. Xavier never once visited or inquired about their health and never borne the expenses of their birth even. While at home, Mr. Xavier drank heavily and often beat the wife and children without good reason. You are a paralegal helping Mrs. Xavier, who is your client, asks you to seek dissolution of marriage along with maintenance of wife and children plus outstanding dower amount. Draft a case for her and add annexures of that are required to strengthen your case. First of all, you have to understand the proposition, what your client is demanding. Mrs. Xavier is demanding dissolution of marriage by any of ground that is relevant according to proposition provided in Dissolution of Muslim Marriage Act. Then you have to think if marriage is dissolved under any ground provided in Dissolution of Muslim Marriage Act, so whether she is allowed to take dower amount or not. She's asking that you have to seek dower amount as well. So you have to see whether you can seek dower amount under this law or not. Fine. Then you have to focus that all the children are minor or not. If minor, what are the conditions of maintenance? Till till how much time, how many years a woman can get maintenance for boys and a girl, minor children's, and what are the consequences for Mr. Xavier, assumed consequences for Mr. Xavier, who left his wife and children and went to live with another woman for last 4 years, and he never ever borne expenses of their birth even. So these are few main points. आपने सबसे पहले इस proposition को पढ़ना है और जो main चीजें हैं उसको highlight करें. लॉ कौन सा है, उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या आप उन्हें कोर्ट से क्या क्या चीज़ें जो है वो सीख के कौन सा रिलीफ दें, वो तो चाहते हैं, लेकिन क्या लॉ के अंडर आप ये एक साथ चीज़ें सीख कर सकते हैं, कोई हर्डल तो नहीं आएगी, कोई इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी तो नहीं आएगी अगर आप सारी चीज़ें एक ही केस में जो है वो सीख कर रहे हैं। और प्रोपोजिशन क्या कहती है, क्या ग्राउंड्स प्रोवाइड करती है। सो ओवरऑल सिनेरियो से आपको कोई ग्राउंड मिलता भी है कि आप कोई डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज को डिसॉल्व कर सकें। ऑल्दो आपकी क्लाइंट तो डिमांड कर रही है, लेकिन आपने खुद देखना है कि वेदर कोई ग्राउंड आपको मिलता है इस प्रोपोजिशन से कि आप उसको बेस बना के ये जो है डिसोल्यूशन सीख करें और मेंटेनेंस जो है वो सीख करें। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोपोजिशन और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है अपनी प्लेन ड्राफ्ट करनी है। फर्स्ट में की पॉइंट्स और एक स्टोरी बनानी है आपने, ठीक है। देन मूविंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस असाइनमेंट की डेडलाइन है ट्यूसडे। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपको मैंने ये असाइनमेंट ऑलरेडी शेयर कर दी है, बट शेयरिंग रिकॉर्डिंग इज़ फॉर रिकॉर्ड पर्पस एंड फॉर योर ईज, कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए इन वन गो। सो डेडलाइन इज़ ट्यूसडे, that is 21 September 2021. Time will be 5 p.m. Pakistan Standard Time. Okay, so you have to complete and submit your assignment before 5 p.m. or at 5 p.m. but not after 5 p.m. Total marks. Total marks for this assignment is 30. 25 marks are allocated for content and legal writing,
while 5 marks are for formatting. Now you have to keep in mind that mode of assignment should be handwritten. So still 25 marks are allocated for content and legal writing and 5 for formatting. So even in handwritten assignment में भी formatting का ख्याल रखा जा सकता है. जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया उसमें मैंने फर्स्ट सैम्पल जिससे हमने चीज़ें कुछ हाईलाइट की कि ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो जनरली बीइंग स्टूडेंट मैंने भी की थी और जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, आपने वो नहीं करनी. वहाँ पे मैंने टैग्स भी लगाए थे. उसकी जो है रिकॉर्डिंग का लिंक जो है उस लेक्चर का वो यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दिया है और इसी जो हमारे जहाँ पे मैं ये शेयर करूँगी रिकॉर्डिंग उसके एंड पे जो है जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें मैं लिंक शेयर कर दूँगी ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें और आप वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करें. तो अगर वही मिस्टेक्स दोबारा होंगी तो आपकी 5 मार्क्स जो एलोकेटेड है फॉर्मेटिंग की उसमें से डिडक्शन होगी. और ओवरऑल कंटेंट और लीगल राइटिंग 25 मार्क्स की है. तो आपने सारे वो पॉइंट्स जो आपको सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में बताए गए कि आपके फैक्ट्स में कोहेरेंस होनी चाहिए, सेल्फ एज्यूम फैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लीनियंसी फैक्ट्स एज्यूम करने की सिर्फ इतनी है कि आप कुछ बेसिक फैक्ट्स, बच्चों 3 बच्चे हैं तो उनके जो नाम हैं, ठीक है, 8 ईयर 4 ईयर 13 ईयर ओल्ड गर्ल, उनके नाम एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, एड्रेस वगैरह जो है घर का जो है वो आप एज्यूम कर सकते हैं, निकाह की डेट एज्यूम कर सकते हैं. बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि निकाह की डेट एज्यूम करते करते उनकी 13 साल की बच्ची है, ये ना हो कि आप निकाह की डेट एज्यूम करें 4 साल पहले. सो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए. आई एम हाईलाइटिंग दीज थिंग्स ताकि आप अपने जो मैथमेटिक्स करनी है अपने डेट्स या फैक्ट्स के साथ तो उसमें आप खुद क्लियर रहें और कॉन्फिडेंट रहें. ठीक है, उसके अलावा अमाउंट ऑफ डॉवर अगर सीख कर सकते हैं तो आप दो तरह से लिख सकते हैं. या तो डॉवर इतना है अभी तक कुछ भी पे नहीं किया आप लेके दें, या आप कह सकते हैं कि इतनी अमाउंट फिक्स हुई थी एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ निकाह, इतनी पेड है और इतनी आउटस्टैंडिंग है. इस तरह से कुछ बेसिक फैक्ट्स आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ नरेटेड स्टोरीज खुद जो है या सिनेरियोज आप एज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ लेके गया मारा बच्चों को स्कूल से निकलवा लिया. इस तरह के फैक्ट्स आपने खुद से एज्यूम नहीं करने बिकॉज ह्यूमन माइंड है, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज आते हैं. तो आपने कुछ बेसिक फैक्ट्स जो है सिर्फ एज्यूम करने हैं और आपने जो है प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करना है. मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि जब हम एकेडमिक असाइनमेंट कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि हम उसमें केस लॉज ये सेक्शंस कर देते हैं या कुछ और ऐसी यूनिक चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाए. बट यहाँ पे आपने बीइंग पैरालीगल, बीइंग लॉयर, बीइंग लीगल एसोसिएट, आप एज्यूम करें कि आप लॉयर बन गए तो आपने प्रैक्टिकल अप्रोच में एक सिंपल सी प्लेंट लिखनी है. ठीक है, then write according to your understanding by keeping in mind the pattern shared in the lecture. आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक स्टोरी बनानी है, उसके उस पैटर्न को फॉलो करना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, ना ही गूगल से, ना ही फ्रेंड से, ना ही किसी और कलीग से. ठीक है, और अवॉइड करें अगर आप ऐसा मुझे लगा कि 2-3 स्टूडेंट्स ने बस थोड़ा सा कोई डिफरेंस क्रिएट करके कहीं से कॉपी किया है, सो दैट विल लीड टू नेगेटिव मार्किंग. एंड वन मोर थिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको एक्सटेंशन अलाउ नहीं की जाएगी कि आप मुझे 5 o'clock या 4:30 के प्लीज़ आज रात 12 बजे तक कर दें, एक ही 2 दिन की बात है, दिन तो सेम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नो, no extension of time is allowed in any case for submission of assignment. Basically, this assignment should be done in one day, in few hours. आपका क्लाइंट आपके सामने बैठा है, वो कहे कि मुझे अर्जेंट मैटर है, तो क्या आप उसे कहेंगे मुझे 1 हफ्ता दे दे? उसको इतनी अर्जेंसी है तो आपने केस ड्राफ्ट करना है. स्टिल यहाँ पे आपके पास 5 दिन होंगे ऑलमोस्ट, बिकॉज आई हैव शेयर्ड असाइनमेंट अ डे बिफोर. तो आपके पास टाइम है, आप उसको लिख सकते हैं. यू हैव टू कंप्लीट दिस in the given time. Okay, then there is an instruction that lecture is shared on YouTube, you can take help from it. जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपके साथ मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है जिसका टाइटल ये है फॉर्मेट एंड ड्राफ्ट ऑफ अ प्लेन विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड रेलेवेंट लॉ. सो हेयर इज द लिंक. मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग होगी, तो आप उस लिंक से डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी है, कोई पॉइंट मिस हो गया. अदरवाइज अगर आपने लेक्चर बहुत थॉरली लिया है सो यू विल बी अवेयर ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस. सो आई होप कि ये असाइनमेंट जो है आप अच्छे से करेंगे, प्रोपोजिशन आपको क्लियर हो गई होगी.
पढ़ के बताने का मकसद है और मेन पॉइंट्स को हिट करने का भी मकसद ये है कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि आपने किस चीज़ पे फोकस करना है। फजूल के फैक्ट्स पे नहीं जाना, फजूल की स्टोरीज नहीं बतानी। मैं आपसे जो मैंने आपको पढ़ाया है, एक तो फॉर्मेटिंग किस तरह से, दूसरा हमने डिसक्लोजर मुस्लिम मैरिज एक्ट को पढ़ा है, सो उसको किस तरह हम रिलेट कर सकते हैं और हम एक स्टोरी की फॉर्म में अपना एक केस कैसे तैयार कर सकते हैं प्रिसाइज सा। आई डोंट नीड 10, 20 या 15 pages. If you do your assignment in 2 pages, 3 pages, that is more than enough. So keep your work precise and do your hard work. Best of luck. Thank you.